الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ آج ہم اور آپ اس مقام پر حاضر ہیں جہاں پر ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، چاہے آپ شروع کیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ، تو وہاں مسجد نبوی شریف ہے، سبحان اللہ۔ وہاں سے آپ چلے آئیے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، تو سرکار غوث پاک کے بغل میں مسجد پاک ہے، سبحان اللہ۔ آپ چلے جائیے مولا علی فاتح خیمبر داماد مصطفیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں، وہاں بھی مسجد کے بغل میں جو ہے مزار پاک سرکار مولا کائنات کا موجود ہے۔ چاہے آپ غریب نواز کے آستانے پر آ جائیے، میں اگر گنانا چاہوں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد پہ ایسے اللہ کے ولی جہاں آرام فرما ہے، جہاں اللہ کے ولی موجود ہیں، وہیں پر اللہ کی مسجد بھی موجود ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کی جو قربت ہوا کرتی ہے اللہ سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، کہ اللہ کے ولی جب اللہ کے ولی اللہ سے دعا کر کے اپنے بندوں کے لیے رہنمائی کی دعا کریں اور ہدایت کے لیے، تو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں بالکل پہنچ چکے ہیں، یعنی آج اگر چاند دکھ گیا تو آج ہی سے تراویح شروع ہے، ورنہ تو کل چاند دکھے تو کل سے تراویح شروع ہے۔ آج ایسے مقام پر ہیں، نفسی نفسی کا عالم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اس سے پہلے، جب ہم لوگ اس سے پہلے یعنی 2024 میں، یہ جو 2025 چل رہا ہے، ہم لوگوں کا جو محلہ اکبر نگر جو وہاں سے اجاڑا گیا، تو ہم لوگ کس طریقے سے تراویح کا کوشش کر کے محمدیہ مسجد میں، مدینہ مسجد میں، اور جہاں جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات حفظ پبلک اسکول تھی، وہاں روزہ افطار کر کے سارے محلے کے لوگ دعائیں مانگتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے کہ اے پروردگار عالم، ہماری یہ جو پوری آبادی ہے 16,000 آبادی کو کسی طریقے سے بچا دے۔ اے پروردگار عالم، ہم جو پریشان ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہے، لیکن اللہ رب العزت کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ہماری دعاؤں کو کہیں نہ کہیں قبول فرما کر اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ اجر عظیم عطا فرما رہا ہے یا فرمائے گا وہ کم نہیں ہے۔ وہ تو عز من تشاء و ذل من تشاء، عزت دینے والا ذلت دینے والا میرا رب ہے۔ لیکن جب میرا رب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب ہم عبادت کے لیے اور ہم راضی ہو جائیں اور عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ یقین جانو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسی لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ورنہ پوری دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں نماز چاہے ظہر ہو، چاہے عصر ہو، چاہے مغرب ہو، چاہے عشاء ہو، یا یہ چھوڑ دیجئے نماز جمعہ بھی نصیب نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں، چاہے وہ اکبر نگر میں ہو، چاہے اکبر نگر سے آنے کے بعد بسنت کنج یوجنا جو دوبگہ کے پاس میں بسنت کنج ہے، جہاں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں آج پبلک اگر آ جائے تو یہاں بالکل سما نہیں سکتی۔ آج ہم لوگ اتنے پریشان ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب ضرور ہم کو ایسی جگہ اور ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ دنیا کے لوگ دیکھتے رہیں گے کہ اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ خالق کائنات کرے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کر لے، ہم یہ چاہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں فوراً عطا فرما دے، لیکن رب تبارک و تعالی کہ بارگاہ میں ہم لوگ دعا تو ضرور کرتے ہیں، لیکن حکمت ہے، حکمت پہ عمل کرنا چاہیے۔ رب جب چاہے گا تب عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو رمضان المبارک کا جو پوتر مہینہ، جو پاک مہینہ جو آ رہا ہے، پرسوں سے جو لگ جائے گا، یہ مہمان ہے، سبحان اللہ کہیے، یہ مہمان ہمارے لیے ہے، جو ہے 15 سے 16,000 اسکوائر فٹ کے لگ بھگ، وہاں پر ہم لوگ انشاءاللہ عالی شان پیمانے پر تراویح سنیں گے، پورا قرآن سنیں گے، اس کے بعد دوسری تراویح بھی ہوگی، اور اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز بھی ہوگی، لیکن جمعہ قائم کے لیے ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جہاں حاضر ہیں، یہیں پر انشاءاللہ جمعہ قائم ہوگا، جیسا کہ ظفر چاچو نے بتایا، اور ہمارے جو ہے افتخار بھائی ہیں، ہمارے نور عالم بھائی ہیں، اور جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، یعنی جو ہے کمیٹی کے لوگ،
अकबर नगर जन सेवा समिति के अलावा यहाँ जितने लोग हैं, अगर नाम लेना चाहें तो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन आप दुआ कीजिए कि जितने लोग मस्जिद या मदरसे के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में, उनके इल्म में, उनके कमाल में और जमाल में खूब बरकतें अता फरमाए। मैं कहना यह चाह रहा था कि रमजान मुबारक का जो ये महीना है, ये महीना मैदान महशर जब कायम होगी तो उसमें सामने आपके हाजिर आएगा। और जो रमजान के महीने में जो खाता पीता रहा, रोजा रखता नहीं था, तरावी नमाज नहीं पढ़ता था, इबादत नहीं करता रहा, यानी रमजान की बेहुरमती करता रहा होगा, तो रमजान का जो ये मेहमान महीना जो आने वाला है, ये मेहमान जब रमजान के महीना जब नफसी नफसी का आलम यानी क़यामत के दिन होगा, क़यामत के दिन खूबसूरत लिबास के साथ हाजिर होगा और कहेगा कि मैं रमजान हूं, कहेगा सुभान अल्लाह, कहेगा रमजान हूं। तो उसके लोग, जितने लोग रमजान के महीने में रमजान का एहतराम करते थे, नमाज में रोजा, रमजान में रोजा रखते थे, अल्लाह का खौफ सीने में बसाते थे, तरावी पढ़ते थे, इबादत करते थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, रोजे रखकर और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे, कुरान की तिलावत करते थे, तो वो रमजान कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, मैं रमजान हूँ और मैं रमजान मेहमान बनकर इनके यहाँ गया था, इन्होंने इतना मेरा इस्तकबाल किया, यानी इस्तकबाल किया यानी रोजा भी रखा, तरावी भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ा, ऐ परवरदिगार आलम इसे तू बख्श दे। रब की रहमत जोश में आएगी, रब इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों जन्नत के दरवाजे को खोल दो और इनको जन्नत में दाखिला फरमा लो। और वही रमजान का महीना कहेगा ऐ परवरदिगार आलम, मैं रमजान था और रमजान में गया था, मैं इनके यहाँ गया था, यानी दाखिल रमजान मुबारक के महीने में गया था, लेकिन इस शख्स ने न मेरी इबादत को, न मेरे दिन में मेरे लिए न इबादत किया, रमजान के महीने में ना इबादत किया, ना रोजा रखा, ना जो है नमाजें पढ़ी, बल्कि खुलेआम खाया करता था, खुलेआम पिया करता था, खुलेआम जो है नमाज की औकात अजान हो जाती थी ये टहला करता था, ना नमाज पढ़ता था, ना रोजा रखता था। वही रमजान जो मेहमान है, जिस तरीके से जन्नत में दाखिला करवाता हुआ नजर आया, उसी तरीके से वो मेहमान रमजान उसे जहन्नम में भी दाखिला करवाता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमें और आपको ये चाहिए कि आज जो है इरादा करें और सच्चे दिल से तौबा करें अल्लाह के वली की बारगाह में, इसलिए कि अल्लाह के वली की बारगाह में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। किताबों में आया है, एक शख्स रास्ते से जा रहा था और जाते जाते एक शख्स से जब मुलाकात हुई तो उसने कहा कि जरा ये बताओ, मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूं, लेकिन मैं 99 आदमी को कातिल हूं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने कहा नादान, तू 99 आदमी का कातिल है और अभी भी अपने आप को बख्शिश कराना चाहता है, तुम्हारी कभी बख्शिश नहीं होगी। गुस्से में आया, 99 के बजाय उसका भी सर कलम कर दिया, यानी 100 के 100 पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए एक शख्स से फिर मुलाकात हुई। उसने पूछा, उसने कहा जरा ये बताओ, मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा हूँ, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी तौबा को कबूल कर सकता है? उसने कहा हाँ हाँ बेशक, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाने के लिए तुम जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहे हो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वली के सदक़े में तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा और तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। ये कहना ही था कि उसका इंतकाल हो गया, तुरंत जहन्नम के फरिश्ते आ गए और कहने लगे कि हम इसको जहन्नम में लेकर आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर हुआ कि जन्नत के फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे कि हम इसको जन्नत में लेकर जाएंगे। आपस में दोनों में झड़प हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो अल्लाह की बारगाह से निदा आई, कहे फरिश्तों लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो? ये मेरा महबूब वली की बारगाह में जा रहा था, लिहाजा जमीन को नापो, अगर जमीन अल्लाह के वली से करीब है तो जहन्नम के फरिश्ते आ गए और कहने लगे कि हम इसको जहन्नम में लेकर आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर हुआ कि जन्नत के फरिश्ते आ गए, वो कहने लगे कि हम इसको जन्नत में लेकर जाएंगे। आपस में दोनों में झड़प हो गई, दोनों में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो अल्लाह की बारगाह से निदा आई, कहे फरिश्तों लड़ते क्यों हो, झगड़ते क्यों हो? ये मेरा महबूब वली की बारगाह में जा रहा था, लिहाजा जमीन को नापो, अगर जमीन अल्लाह के वली से करीब है तो ये जहन्नम के फरिश्ते तुम छोड़ देना, ये जन्नती है, जन्नत में इसका दरवाजा खुला हुआ है, अगर वली से दूर है तो उसे छोड़ देना, ये जहन्नम में चला जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म दिया, कहे फरिश्तों जमीन को नापो। जमीन को जब नापा गया तो जो शख्स 99 आदमी बल्कि 100 आदमियों का कातिल था, तो अल्लाह के वली की बारगाह में जाने के लिए जो निकल चुका था, तो वली का रास्ता बिल्कुल करीब था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खताओं को माफ फरमाकर उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया। तो आज हम और आप यहाँ पर हाजिर हैं, अल्लाह के वली मूसा बाग, क्या नाम है,
रजा इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम लोग हाजिर हैं, तो आप नमाज भी पढ़ें और ये अल्लाह के वली को गवाह भी बनाएं, इसलिए कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। किताबों में आता है यतक़र्रबु इला अब्दी बिन नवाफिल फकुन्तु समउहु अल्लज़ी वकुन्तु बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही वकुन्तु यदाहु अल्लाती यब्तिशु बिहा औ कम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला। यानी इबादत के जरिए, अल्लाह की इबादत के जरिए बंदा अल्लाह से इतना करीब हो जाया करता है, इतना करीब हो जाया करता है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं उसकी आंख बन जाया करता हूँ, मैं उसके कान बन जाया करता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाया करता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाया करता हूँ। यानी अल्लाह की बारगाह में जब आप इबादत करते करते अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आपकी आंखों में वो ताकत अता फरमा देता है कि जब आप निगाह डालते हैं तो नीचे निगाह डालते हैं तो आपको तहतुस सरा नजर आने लगता है, जब ऊपर निगाह डालते हैं तो अर्शे मुअल्ला नजर आने लगता है, जब आप दाएं देखते हैं तो पूरा दाएं नजर आने लगता है, जब बाएं देखते हैं तो पूरा बायां नजर आने लगता है। यानी गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जिस तरह मेरे हाथ में राई का दाना हो। सुभान अल्लाह। यानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप गदेली में राई का दाना आप सोचिए कितना छोटा है, उतने बराबर में पूरी दुनिया को देख लिया करते हैं। ये आज जो है बहुत साल पहले मेरे गौसे आजम ने फरमाया था, लेकिन आज आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप अपने छोटे से मोबाइल में पूरी दुनिया को एक मिनट में आप खुद ही नजारा कर लिया कर सकते हैं। लेकिन मेरे गौसे आजम बहुत साल पहले फरमाए थे कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जिस तरह मेरे हाथ में राई का दाना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अल्लाह के वलियों से कुर्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हैं, जो मूसा बाग, बसंत कुंज और थाना दुबग्गा के करीब में, जहां हम लोग इंशाअल्लाह 50, 51 और 52 पार्क के बीच में जो टेंट लग रहा है, इंशाअल्लाह वहां 5-6 पारे की तरावी का एहतमाम है। आप सभी लोग एक साथ बैक वक्त तरावी में पहुंचें और रास्ते में इधर उधर कोई भी बेहरमती, कोई भी बेइज्जती, कोई भी किसी को मारा पीटी, इस तरह की हरकतें ना होनी पाए। इसलिए कि हमको एकजुट होकर हमें ये बताना है कि रमजान मुबारक का महीना जो पाक को सफाफ करने के लिए आता है और रहमत और बरकत देने के लिए आता है, इसलिए कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है नफिल का सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाता है और फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर अता फरमाता है। आप अंदाजा फरमाइए, शैतान को बंद कर लिया जाता है, शैतान को जंजीरों से जकड़ लिया जाता है, और जब आप नेक अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में आपको 70 नेकी अता फरमाता है, नफिल का सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाया करता है। और अगर कोई इंतकाल कर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रमजान मुबारक की बरकत से उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। तो आप और हम सबको बहुत एहतराम के साथ इंशाअल्लाह बसंत कुंज में तरावी पढ़नी है और नमाज अदा करना है, और जितने लोग हैं सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, और अकबर नगर जन सेवा समिति और जो कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी में बहुत सारे लोग, उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जैसे हमारे आमिर भाई वगैरह की कुर्बानी रहती है, जफर चाचू साहब हैं, और भी तमाम हमारे इम्तियाज भाई